class. In last class, uh, be watching the design network topologies and those factors depends on the designing of the network topologies. First is cost, second is performance, third is scalability, and fourth is reliability. Cost basically consider the cost of the installation, maintenance, and equipment. Choose your topologies that the balance performance with budget constraint. With budget constraint. अपने बजट के हिसाब से कॉस्ट होगी. Second parameter is performance. Performance is the main important part of designing network topologies. Measurement of the performance, evaluate data speed and latency requirement. Select a topology that meets the performance demands of the intended applications. Third parameter is scalability, already studied in the last class. Just quick revision. Scalability ensures the network can grow and adapt to future needs. Choose a topology that allows for the expansion and flexibility. अगर नेटवर्क को अगर एक्सप्लेन करना है या फ्लेक्सिबल बनाना है तो उसके लिए ये पैरामीटर बहुत जरूरी है. एंड लास्ट पैरामीटर इज रिलायबिलिटी. प्रायोरिटाइज रिडंडेंसी एंड फॉल्ट टॉलरेंस. अगर कहीं पर कोई खराबी आती है तो उसके लिए वो रिलायबल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा, उसका फॉल्ट टॉलरेंस कैसे बनेगा. तो select a topology that minimize the downtime and ensure continuously connectivities. And we saw in last class real world example of the topologies. First topology, early Ethernet LANs, local area network in small offices, utilize the bus topology. Due to its simplicity and cost effectiveness, however, it's rarely used in the modern network. And second topology is applications of second topologies, state topologies, home and office Wi-Fi network commonly employ state topology, offering the good scalability and centralized management. Third category is ring topologies. Basically, ring topology is used in the metro area network, covering the large geographical areas. Often use ring topology for high bandwidth and fault tolerance. Last one is the mesh topologies. Mesh topologies is topologies who dedicated the connection of one node to another node, and these nodes connected to another node. So this topologies, Google Wireless Broadband Network in the cities utilize the mesh topologies, enhancing the coverage, providing fault tolerance, and optimizing performance. And next one is the advanced concept in the topologies. First is dynamic topologies, second is virtual topologies, and third is topologies in the IoT network, already studied in the last class. And next, types of the computer network architecture. There are the three types. First is client-server architecture, second is peer-to-peer review architecture, third is hybrid network architectures. Hybrid network architecture is the combination of both client-server architecture and peer-to-peer architectures. Client-server architecture consists of the system that manages the deliver the resources via the network that the client requests, and the client-server architecture, each and every computer or process on the network is considered as the client or server. The servers, like the computers, perform various operations to satisfy the client request. And second architecture is the peer-to-peer review. Peer-to-peer review is the public domain. There is no central server for the processing. Every peer may share the sum of its resources like memory and the processing power with the entire computer network. Unlike the client-server architecture, peer-to-peer is decentralized systems, whereas client-server architecture is the centralized system.
So this systems, which files will be transferred from one system to another without using the central servers. And third is the hybrid network. Hybrid network architecture consists both architectures. That is the client server architecture, peer-to-peer architectures. And already studied these components, computer network components. First is NIC, network interface card. Second is switch. Third, hub, routers, uh, cables or transmission media, and modem are remaining. These components are studying in today's class. NIC card, basically in a network interface card. It is hardware component used to connect a computer with another computer onto a network. अगर किसी भी स्मार्ट मशीन या डिजिटल सिस्टम में अगर इंटरनेट चलाना है तो उसमें एनआईसी होना जरूरी है. अगर एनआईसी नहीं होगा तो उसमें इंटरनेट नहीं चलेगा. एनआईसी का एक एड्रेस होता है. दिस इज नोन एज द मैक एड्रेस एंड ऑल्सो नोन एज द फिजिकल एड्रेस. Basically, it is encoded on the network card chip that is known as the NIC, which is assigned by the one reputed agency, IEEE, to identify a network card uniquely. MAC address is stored in the PROM, programmable read-only memory. And there are the two types. First category is wired NIC and second category is wireless NIC. Wired NIC is present inside the motherboard. Cables and connector are used with wired NIC to transfer the data. जो कंप्यूटर्स आते थे पुराने कंप्यूटर्स है, अभी भी डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं कुछ जिनमें वायर्ड एनआईसी होता था या अभी भी होता है कुछ में. और second category is wireless NIC. Wireless NIC contains the antenna to obtain the connections over the wireless network. For example, laptop computer contains the wireless NIC. अब कुछ कंप्यूटर्स जो हैं या लैपटॉप की बात कर रहे हैं, मोबाइल फोन की बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे डिजिटल सिस्टम्स हो सकते हैं जिन्हें स्मार्ट डिवाइस भी बोलते हैं. उनमें जो एनआईसी लगा होता है इंटरनेट चलाने के लिए वो सेकंड कैटेगरी वाला लगा होता है, वायरलेस एनआईसी. इसलिए हम उसे वाईफाई से कनेक्ट कर पाते हैं. अगर वायर्ड वाला होता तो उसमें लैन केबल लगानी पड़ती, केबल से इंटरनेट चलाना पड़ता. और नेक्स्ट कंपोनेंट ऑलरेडी स्टडीड, हब basically hardware device that divides the network connection among the multiple devices. When computer requests for the some information from a network, first sends the request to the hub through cables or transmission media. Hub will broadcast this request to entire network. Or hub working of a hub will broadcast this request to entire network. It is the limitation of the hub. Okay, this will broadcast this request, any request to the entire network. All the devices will check whether the request belongs to them or not. The device is responsible for the every request, every data, every task. If the request belongs to them, so if not, the request will be dropped. Nowadays, the use of the hub is rarely, and it is replaced by more advanced computer network components such as the switches and routers. अगर अभी की बात करें तो हब का कोई यूज नहीं है, हब को यूज भी नहीं करते हैं. स्विचेस को यूज करते हैं, राउटर्स को लगाते हैं. नेक्स्ट कैटेगरी इज स्विच. Switch basically hardware device that connect the multiple device on a computer network. Our switch contains more advanced features than the hub. The switch contains the updated table. Obviously, in the switch and the hub is the non-intelligent device, which is the intelligent device. Intelligent device because of the create a table, update table, and data will be created. The
multiple node are connected. Multiple node are connected to make a table and updated table 10 to 10. Switch deliver the message to correct destination based on the physical address present in the incoming message. स्विच हब की तरह काम नहीं करता है कि कोई मैसेज आया तो वो ब्रॉडकास्ट कर दिया. स्विच उसी जगह भेजेगा जिसकी जगह पहुंचना चाहिए. तो वहां पे उस डिवाइस का उसके पास फिजिकल एड्रेस होगा. फिजिकल एड्रेस ऑल्सो नोन एज द मैक एड्रेस. और या ऐसे भी बोल सकते हैं कि उस डिवाइस के अंदर एनआईसी लगा होगा, उसका एड्रेस होता है, उसके थ्रू वो डेटा उसी पर्टिकुलर डिवाइस के पास सेंड करेगा. फिर हमने पढ़ा था राउटर. Router basically hardware device which is used to connect a LAN local area network within the internet connections. अगर किसी भी नेटवर्क में इंटरनेट चलाना है तो हमें राउटर लगाना पड़ेगा. राउटर की हेल्प से इंटरनेट चलाते हैं. एक मॉडल होता है जो कंप्यूटर नेटवर्क के लिए पढ़ाया जाता है, जिस मॉडल का नाम है डेट इज ऑल्सो नोन एज द ओएसआई मॉडल. ओएसआई ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल्स. उसमें कुछ लेयर्स होती हैं और 7 लेयर्स होती हैं. उसमें लेयर नंबर 3 होती है नेटवर्क लेयर. तो राउटर की जो पूरी वर्किंग या जिस लेयर में से बिलोंग करता है वो लेयर का नाम है नेटवर्क लेयर. ये भी हमने सारी चीजें पढ़ी हैं. इसके अलावा भी राउटर के बहुत सारे काम होते हैं. राउटर इज ऑल्सो द इंटेलिजेंट डिवाइस. They make a tables and determine the best path from the available paths for the transmission of the packets. और तो पूरा ये सारा काम करता है. ये भी पता करेगा कि उसके लिए रिक्वेस्ट के लिए कौन सा अच्छा पाथ होगा, बेस्ट पाथ होगा. टेबल्स भी क्रिएट करेगा. ऐसे होगा. तो अभी आपके एक सवाल हो सकता है कि सर ये आपने स्विच के अंदर भी पढ़ाया, ये भी राउटर के, तो उसमें डिफरेंस क्या है? तो अगर डिफरेंस की बात करें तो ये डिफरेंस है कि इंटरनेट चलाने के लिए राउटर की जरूरत होती है, या कोई भी हम किसी वेबसाइट को एक्सेस करेंगे तो राउटर का होना जरूरी है, क्योंकि वो इंटरनेट सर्विस भेजता है. और स्विच का काम ये होता है कि बहुत सारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, डिजिटल सिस्टम्स हो सकते हैं. तो राउटर के अंदर तो कुछ ही पोर्ट्स होते हैं जिससे कनेक्ट कर पाएंगे. अगर जैसे एक लैब के अंदर 50 कंप्यूटर्स होते हैं तो 50 कंप्यूटर्स एक राउटर से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन उससे केबल्स नहीं लग सकती हैं. पोर्ट्स नहीं होते हैं इतने ज्यादा. तो वो पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट्स चाहिए, मल्टीपल पोर्ट्स चाहिए, तो उसके लिए स्विच लगाना पड़ेगा. तो स्विच भी इंटरनल लेवल पे वो सारे काम, अपनी टेबल बनाना, वो सारे काम कर लेता है. और स्विच के अंदर इंटरनेट चलाना है तो राउटर लगाना होगा. तो पहले जो रिक्वेस्ट होगी कंप्यूटर की वो स्विच के पास आएगी. स्विच के बाद राउटर पे जाएगी. राउटर भेजेगा जिस सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं. अगर मैं फेसबुक के सर्वर को एक्सेस करना चाहता हूँ, if we access the Facebook server, तो then router sends the request to Facebook servers, and Facebook server respond to routers, and router sends to the switch, and switch sends to the particular specific computers. uh, Basic difference of switch and routers already studied in the last class. और आज की क्लास जो होने वाली है वो यहाँ से शुरू होने वाली है. टुडेस क्लास फर्स्ट टॉपिक इज मॉडेम. मॉडेम बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस that allows the computer to connect to the internet over the existing telephone lines. मॉडेम की बात करें तो मॉडेम की स्पेलिंग होती है MODEM. तो आगे का MO जो लिखा है उसका मतलब होता है मॉड्यूलेशन, और DEM का जो मतलब होता है डीमॉड्यूलेशन. और टेक्निक भी होती है मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, जो फिजिक्स स्टूडेंट या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को ये पढ़ाई जाती है. तो बहुत सारे टेक्निक या किसी भी सिग्नल्स को कैसे मॉड्यूलेट कर रहे हैं, कैसे डीमॉड्यूलेट कर रहे हैं, बहुत सारे उस चीज के लिए जो डिवाइस बनाया गया वो उसका नाम था मॉडेम. तो जो राउटर के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट होता है, जो चिप लगी होती है, आईसी लगी होती है, सर्किट लगा होता है, वो भी मॉडेम का लगा होता है. तो जो पहले टेलीफोन लाइंस के थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी होती थी, सारे काम होते थे, या इंटरनेट चलता था, टेलीफोन चलता था, वहां पे जो डिवाइस लगा होता था वो भी मॉडेम होता था. मॉडेम इज नॉट इंटीग्रेटेड विद द मदरबोर्ड. rather
Then it is installed on the PCI slot found on the motherboard. उसके अंदर नहीं होता है, बाहर से एक स्लॉट होता है, वहां पर लगाना होता है. It stands for the modulator and demodulators. It converts the digital data into analog signals over the telephone lines. डिजिटल डेटा को एनालॉग सिग्नल में भी कन्वर्ट करता है. Basic based on the difference in the speed and transmission rate, a modem can be classified in the following categories: standard PC modem or dial-up modem. इसकी अगर हम कैटेगरी की बात करें तो 3 कैटेगरी में होते हैं. इसके अलावा भी और भी कई सारी कैटेगरी है, लेकिन स्पीड या ट्रांसमिशन रेट के आधार पर कुछ कैटेगरी हमने यहाँ पे लिखी है जो क्लासिफाई किया. पहली कैटेगरी है स्टैंडर्ड पीसी मॉडेम या उसे डायल-अप मॉडेम भी बोलते हैं. सेकंड कैटेगरी सेलुलर मॉडेम और थर्ड कैटेगरी इज केबल मॉडेम. Last computer network component is the cables and connectors. Cables basically transmission media or transmission media used for the transmitting the signals or data. There are types of the cables used in the transmission. Three categories: twisted pair cables, coaxial cables and fiber optic cables. और ये सारी चीजें देखने से पहले जो ट्रांसमिशन मीडिया, तो मुझे लगता है केबल्स की बात कर रहे हैं तो ट्रांसमिशन मीडिया की बात कर रहे हैं, तो हम पहले ट्रांसमिशन मीडिया की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है या कंपोनेंट रहेगा कंप्यूटर्स नेटवर्क का या कंप्यूटर्स के लिए. तो फर्स्टली, what do you mean by the transmission media? Transmission media is a communication channel that carries the information from the sender to the receivers. Data is transmitted through the electromagnetic signals. वो सिग्नल्स की अलग बात है, जो सिग्नल्स होंगे, लेकिन ट्रांसमिशन मीडिया जो होता है उसका काम या वो कम्युनिकेशन चैनल बोल सकते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन डेटा या सिग्नल्स को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर्स या ऐसे बोल सकते हैं कि सेंडर से रिसीवर तक लेके जाने का काम करती है. उसकी अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया इज कैटेगराइज्ड इन टू टाइप्स. फर्स्ट इज गाइडेड मीडिया, सेकंड इज अनगाइडेड मीडिया. फर्दर गाइडेड मीडिया कैटेगराइज्ड इन थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज कोएक्सियल मीडिया, कोएक्सियल गाइडेड मीडिया. Second category is fiber optics. Third category is twisted guided media. Second category is unguided media, is further categorized in three types. First is radio waves. Second category is microwaves. Third category is infrared waves. Guided media basically wired media. वायर्ड मतलब वायर केबल्स की बात कर रहे हैं, तो केबल के थ्रू डेटा सेंड करना या मीडिया या कैटेगरी की बात कर रहे हैं उसे गाइडेड मीडिया बोलते हैं. उसकी भी 3 कैटेगरी हैं, या तो कोएक्सियल केबल्स होंगी या फाइबर ऑप्टिक केबल्स होंगे. यहाँ गाइडेड मीडिया की बात कर रहे हैं इसलिए मैं केबल्स बोल रहा हूँ यहाँ पर. तो कोएक्सियल केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स या ट्विस्टेड केबल्स या ट्विस्टेड वायर. अनगाइडेड की 3 कैटेगरी होंगी. पहले रेडियो वेव्स, दूसरी माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स. अब एक एक करके हम आगे पढ़ते हैं कि किसका कहाँ यूज है, क्या होता है. ये कोई बहुत नई चीज नहीं है, टर्म्स नए हो सकते हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ये आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हो, करते आ रहे हो ये सारी चीजें. तो बस वो मुझे कंक्लूड करना है या ये चीजें बतानी है कि कौन सी चीज क्या होगी और किस तरीके से काम हो रहा है. गाइडेड मीडिया की पहली
कैटेगरी की बात करें तो टू स्टेट पेयर केबल्स, टू स्टेट पेयर केबल्स वो केबल्स होती हैं कि उसमें दो वायर होते हैं और दोनों आपस में ट्विस्ट होते हैं। रेड हो सकता है, येलो हो सकता है, उसमें रेड के साथ ब्लैक हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके ऊपर से कवर, उसका होता है कवर, मतलब जैकेट बोल सकते हैं। तो बेसिकली टू स्टेट पेयर केबल्स इज a physical media made up of pair of cables twisted with each other. Or twisted pair cables is cheap as compared to the other transmission media. मतलब थोड़ा सस्ता होता है बाकी के कंपैरिजन में। और इसका काम क्या होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को सेंड करने के लिए, किसी डेटा को सेंड करने के लिए, जैसे आपने लैन केबल देखी होंगी, तो लैन केबल उसमें भी इस तरीके की वो होती हैं, उसमें वायर ज्यादा होते हैं। यहाँ पे अभी हम दो के मतलब जो आपस में ट्विस्ट हो उस तरह की जो केबल होती है उसे ट्विस्टेड पेयर केबल बोलते हैं। अगर इसकी और भी डिटेल में बात करें तो क्या होता है, इसे यूज करने इंस्टॉलेशन ऑफ द ट्विस्टेड पेयर केबल इज इजी, आसानी से हो जाता है, लाइट वेट भी होता है। फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर द ट्विस्टेड पेयर केबल्स इज फ्रॉम 0 to 3.5 किलोहर्ट्ज। इतने किलोहर्ट्ज का सिग्नल इस रेंज में उसमें सेंड कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सिग्नल सेंड करना होगा उसका कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होगी। जो हमारे घरों में भी वायर लगे होते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स जो लगे होते हैं, उसमें भी जो सिग्नल्स आ रहा होता है, सिग्नल्स बेसिकली मतलब इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, उसकी भी कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी होती है। Twisted pair cables consist of two insulated copper wires arranged in regular spiral patterns. होते हैं मतलब वायर, उसके अंदर कॉपर वायर होंगे, कॉपर के ऊपर इंसुलेशन होगा, वो इस तरीके से स्पाइरल पैटर्न में होंगे। Degree of the reduction in noise interferences determine the number of the turns per foot, increasing the number of the turns per foot decrease the noise interference. नॉइस एक टर्म होता है जो कि नेक्स्ट स्लाइड में, नॉइज इंटरफेरेंस, एट्यूनेशन, इनके क्या मतलब होंगे, क्या सारी चीजें होंगी, अभी नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में, सॉरी नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। तो अभी हम गाइडेड मीडिया की पहली कैटेगरी पढ़ रहे थे जो ये ट्विस्टेड पेयर केबल्स की बात कर रहे हैं हम। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में केबल होती है जो कि वायर आपस में ट्विस्ट होते हैं, उसकी इंस्टॉलेशन बड़ा आसानी से हो जाती है, लाइट वेट भी होती है, उसकी जो रेंज होती है 0 to 3.5 किलोहर्ट्ज होती है, उसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज। अब अनसील्डेड ट्विस्टेड, उसकी अब उसकी भी दो कैटेगरी होती हैं, यहाँ पे लिखी हुई है ट्विस्टेड के अनसील्डेड और सील्डेड। अनसील्डेड का मतलब उसके ऊपर से सील्ड नहीं लगाई हुई है। सील्ड क्या होती है बेसिकली, उस ऊपर से प्लास्टिक से बस प्लास्टिक का इंसुलेशन लगा दिया, उसके अंदर से कोई वायर एक जाली टाइप की लगती है, उसे बोलते हैं सील्ड। तो वो भी देखी होगी, कई सारे वायर काटते हैं तो उसमें एक जाली सी निकलती है, बहुत सारे वायर होते हैं उसमें नहीं निकलती है, नहीं निकलती है उन्हें अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर बोलते हैं। इसमें निकलती है वो सील्डेड वाले होते हैं, सील्ड लगी होती है उसमें। तो an unshielded twisted pair is widely used in telecommunication. टेलीकम्युनिकेशन का जो भी काम कर रहे होते हैं वहां पे ये यूज किए जाते हैं। उनके नाम भी होते हैं, अगर आप मार्केट में जाओगे तो आपको बताना होगा कि अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल है तो कौन सी लेंगे, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। बेसिकली वहाँ कैटेगरी नहीं बोलते, कैट करके बोलते हैं। तो मुझे कैट 1 केबल चाहिए, कैट 2 केबल चाहिए, कैट 3 केबल चाहिए, कैट 4 केबल चाहिए। लेकिन ये पता कैसे करें कि कौन सी केबल्स चाहिए, मतलब हमें जरूरत क्या है। तो वो होता क्या है कि कहाँ पे यूज होता है वो, कैटेगरी 1 इज यूज फॉर द टेलीकम्युनिकेशन लाइंस दैट हैव स्लो या लो स्पीड डेटा। जहाँ पे डेटा की स्पीड कम रखनी है, कम है वहाँ पे, तो वहाँ पे मैं कैटेगरी 1 केबल लगा लूंगा, सिंपल सा, जरूरत ही नहीं है उसमें। स्पीड थोड़ी ज्यादा रखनी है तो कैट 2 में लगाऊंगा, जिसकी स्पीड होगी 4 Mbps, मतलब 4 MB पर सेकेंड, मतलब 4 MB मतलब 4 मेगाबिट्स डेटा एक सेकंड में जा सकता है उसमें, मैक्स टू मैक्स। अगर मुझे उससे भी ज्यादा डेटा सेंड करना है तो मैं कैट 3 लगाऊंगा,
जो सपोर्ट करेगा 16 Mbps। उससे भी ज़्यादा करना है तो कैट 4 20 Mbps, जो कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लगाते हैं उसे। कैट 4 जैसे एक लगभग किलोमीटर्स में लगानी हो तो कैट 4 लगाते हैं। कैट 4 बहुत पॉपुलर केबल्स है, ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं। कैट 5 यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेटा स्पीड चाहिए। कई बार कैमरे के लिए कैमरे अगर पूरा जैसे अपने आगरा की बात करें तो आगरा में वो नगर निगम की तरफ से जो कैमरे लगे हुए हैं, तो उसमें जो केबल लगी है वो कैट 5 लगी है, क्योंकि उसमें इतनी स्पीड चाहिए 200 एमबीपीएस। मतलब इतना स्पीड, मतलब कोई भी ऐसा नहीं हो कि कोई भी इमेज, कोई भी डेटा लॉस हो जाए या कोई दिक्कत आए, तो वो कैट 5 यूज़ करते हैं। तो अगर हम कैटेगरी का एक बार फिर से जल्दी से देखें तो इसमें ये था कि इसकी कैटेगरीज होती हैं, 5 कैटेगरीज होती हैं, इसके अलावा भी कैटेगरीज होती हैं। अभी मैंने इतना ही लिखा। तो कैट 1 लो स्पीड के लिए यूज़ करते हैं, कैट 2 की स्पीड 4 एमबीपीएस के करीब होती है, कैट 1 मतलब केबीपीएस में होगी। कैट 3 16 एमबीपीएस, कैट 4 सपोर्ट्स टू 20 एमबीपीएस, कैट 5 सपोर्ट्स टू और 200 एमबीपीएस। इसके क्या-क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं? एडवांटेजेस ऑफ द अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। इट इज़ चीप, सस्ती होती है केबल ये। इंस्टॉलेशन बड़ा आसानी से हो जाता है। इट कैन बी यूज्ड फॉर हाई स्पीड लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के लिए लैन केबल भी इसी यही वाली यूज़ करते हैं। कभी भी काट के देखना कोई शील्ड नहीं निकलेगी, सिर्फ वायर निकलेंगे उसमें। इसके नुकसान क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क के लिए तो यूज़ कर लो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में अगर इसे यूज़ करते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए उसमें अ, कहीं न कहीं नॉइज़, एटेन्यूएशन ये सारी चीज़ें आती हैं। मतलब दूसरे सिग्नल्स आगे मिल जाते हैं, उसकी वजह से दिक्कत होती है सिग्नल्स को आगे फॉरवर्ड होने में, जाने में। तो शॉर्टेज डिस्टेंस के लिए बहुत अच्छी है ये, लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन-सी लगाएँ? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए लगाएँ शील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स। उसमें क्या होता है कि उसमें एक शील्ड लगी होती है, वायर होंगे, ट्विस्टेड पेयर ही केबल होगी। जो वायर होंगे वो ट्विस्ट होंगे, उसके ऊपर एक शील्ड लगी होगी, एक जाली लगी होगी। जाली के ऊपर उसके प्लास्टिक कवर लगा होगा, उसे जैकेट बोला जाता है। तो इस तरीके से होगा। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फ़ायदे क्या है, इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं? कि इसकी कॉस्ट भी अगर देखी जाए तो ज़्यादा इतनी हाई नहीं होती है, उससे थोड़ी ज़्यादा होती होगी, लेकिन इतना भी वो नहीं है। इंस्टॉलेशन तो आसानी ट्विस्टेड पेयर के लिए आसानी से हो जाता है, और नॉइज़ वगैरह भी थोड़ी-सी उसके रिस्पेक्ट में कम होती है। डेटा ट्रांसमिशन के लिए हाई स्पीड होती है, इसे लॉन्ग डिस्टेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। डिसएडवांटेज, बेसिकली डिसएडवांटेज ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन अगर यूटीपी की बात करें, मतलब अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर की बात करें, तो उसके कंपैरिजन में थोड़ी-सी महँगी होती है, और एटेन्यूएशन रेट थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। एटेन्यूएशन होता क्या है वो अभी पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें। तो इसमें क्या है, इसे वही केबल होती है लेकिन शील्ड होती है, उसकी वजह से नॉइज़ एटेन्यूएशन वाली दिक्कतें जो हो रही थी वो कम होती हैं, और दूसरी चीज़ अ, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज़ कर लेते हैं, डेटा ट्रांसमिशन रेट भी अच्छी खासी होती है। अब पहली कैटेगरी थी इसमें ट्विस्टेड पेयर वाली, तो ट्विस्टेड पेयर में हमने दोनों पढ़ ली, अनशील्डेड और शील्डेड। अब इसकी दूसरी कैटेगरी कोएक्सियल केबल्स। कोएक्सियल केबल्स, पहले मैं इसकी एप्लीकेशंस बता दूं। एप्लीकेशंस वो जो यूज हो रही होती है, कभी भी देखो डिस्क की केबल जो होती है, डीटीएच केबल या डिस्क केबल जो बोलते हैं, वो कोएक्सियल केबल होती है। लैन केबल होती है वो शील्डेड, मतलब ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं। तो उसमें कोएक्सियल केबल्स में क्या होता है कि एक वायर होता है उसमें। तो एक वायर होता है, उसके ऊपर कितने कई सारी लेयर होती हैं। तो पहले एक वायर होगा, मतलब कंडक्टर होगा, उसके ऊपर एक इंसुलेशन होता है, इंसुलेटर्स बोलते हैं। उसके ऊपर शील्ड होती है, और शील्ड के ऊपर फिर से एक कवरिंग होती है, जैकेट्स होती है। So basically, coaxial cable is only used for transmission media. For example, TV wire usually coaxial cables. Name of the cables is coaxials, contains two conductor parallel to
each others. It is the higher frequency. अब इसमें टू कंडक्टर पैरेलल टू ईच अदर्स, इसमें भी क्या होता है अब हम डेटा ट्रांसमिशन की बात करें, या जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट या जो फिजिक्स स्टूडेंट या जो भी साइंस स्टूडेंट रहे होंगे, उसमें हमेशा से ये पढ़ाया जाता है कि सिग्नल्स भेजने के लिए कभी भी एक वायर से नहीं जाता, दो वायर से ही जाता है। एक उसका पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा, या एक फेस वायर होगा, एक ग्राउंड वायर होगा। तो यहाँ पर तो एक है, एक से कैसे होगा? एक से नहीं होता, एक तो इसमें कंडक्टर सामने लगा हुआ है, इसकी जो शील्ड होती है वो भी तो एक मेटेलिक होती है, और इसके ऊपर कैप लगा होता है, हमेशा ध्यान से देखना। वो कैप उसमें डीटीएच के पीछे लगाया जाता है, उसे होल्ड किया जाता है उससे। तो एक वायर का काम वो कर रहा होता है ग्राउंड का या अर्थिंग के लिए माइनस का, और प्लस का काम इसका ये वायर कर रहा होता है। इसकी अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो हायर फ्रीक्वेंसी होती है कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इनर कंडक्टर ऑफ द कोएक्सियल केबल इज मेड अप ऑफ कॉपर। जो अंदर वाला वायर होता है कॉपर का होता है, और जो आउटर कंडक्टर होता है जिसे शील्ड में बोल रहा हूँ, वो कॉपर मैश होता है। कॉपर मैश मतलब कॉपर की जाली होती है। द मेटल कोर इज मेड अप ऑफ नॉन कंडक्टिव कवर्स सेपरेट द इनर कंडक्टर फ्रॉम आउटर कंडक्टर। शील्ड के नीचे इंसुलेशन इसलिए लगाया गया है कि ऊपर वाला और नीचे वाला मिल ना जाए। कई बार कुछ अगर इसे इससे मिला दो तो वो कई सिग्नल ही नहीं आएंगे। बहुत सारे जैसे उसका अगर कैप निकल जाए या वो अगर टच हो जाए आपस में, तो उसके सिग्नल्स आना बंद कराएंगे, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगे आपस में। तो इसमें दो कंडक्टर होते हैं, इनर और आउटर। मिडल कोर is the responsible for the data transferring, whereas the copper mesh prevent the EMI electromagnetic interference. वो किस तरीके से होता है, पहले वो डेटा सेंड करने के लिए होगा, ऊपर का जो होगा वो EMI, सॉरी, तो जिस टीवी के लिए ये क्यों यूज किया जाता है, या तो सवाल हो सकता है। सवाल तो वो इसलिए यूज किया जाता है कि इसकी जो शील्डिंग होती है बहुत होती है, वो कंडक्टर भी बोलते हैं। जो बाहर का जो अंदर वाला वायर होता है उससे सारे सिग्नल्स जा रहे होते हैं। ये टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है, टीवी पे आ रहा है, वो अंदर वाले सिग्नल, अंदर वाले वायर से सिग्नल्स जा रहे होंगे। तो बाहर का कोई भी उस सेम फ्रिक्वेंसी का सिग्नल उसके अंदर वाले सिग्नल से इंटरेक्ट ना करे या इंटरफेस ना करे, उसकी वजह से वो डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस वजह से इस तरह की केबल लगाई जाती है। बीच में कई केबल कटी होती है तो ये प्रॉब्लम आती भी है कई बार। अगर इसकी बात करें, इसके टाइप्स ऑफ द कोएक्सियल केबल्स, तो दो तरह के होते हैं। एक ट्रांसमिशन बेस बैंड ट्रांसमिशन, और बेस बैंड ट्रांसमिशन इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ट्रांसमिटिंग अ सिंगल सिग्नल्स एट हाई स्पीड। और एक होता है ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। हमारे यहाँ राउटर होता है, उसे भी कई बार ब्रॉडबैंड बोलते हैं। ब्रॉडबैंड का मतलब होता है बैंड, जो होता है बैंड का मतलब होता है सिग्नल। बेस बैंड मतलब सिंगल सिग्नल को ट्रांसमिट करना, एक ही सिग्नल को ट्रांसमिट करेंगे, बेस बैंड ट्रांसमिशन। और कई सारे मल्टीपल सिग्नल्स को अगर ट्रांसमिट करना है तो वो होगा ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन। जैसे अब हम टीवी पे जो आ रहा होता है तो वो एक सिंगल सिग्नल तो नहीं होगा, मल्टीपल सिग्नल्स होंगे। उसमें एक वीडियो भी आ रही है। वीडियो क्या होती है? कलेक्शन ऑफ द इमेजेस। बहुत सारी इमेज को एक क्यूब में लगा देते हैं, वो वीडियो बन जाती है। उसके साथ में आवाज भी आ रही होती है, ऑडियो भी आ रही होती है। एक ऑडियो सिग्नल हो गया, एक वीडियो सिग्नल हो गया। वीडियो में भी कई सारी इमेजेस हो गई, उनके अलग सिग्नल्स हो गए। तो मल्टीपल सिग्नल्स, फिर उसे सिंक्रोनाइज करना कि कौन सा उसमें सीन आएगा, उसके साथ में कौन सी उसमें ऑडियो या साउंड आएगी। तो कई सारे सिग्नल्स को मिला के एक सिग्नल बनाया जाता है, तो वो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन वाली कैटेगरी में आता है। अब इसके फायदे क्या है? एडवांटेजेस ऑफ कोएक्सियल केबल्स, इसकी स्पीड हाई होती है। बाकी का ट्विस्टेड पेयर केबल्स से बेटर होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉइस सैचुरेशन वाली प्रॉब्लम ज्यादा नहीं होती है। बैंडविड्थ भी इसकी हायर होती है।
अब डिसएडवांटेज क्या है, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा उसमें, इट इज मोर एक्सपेंसिव. It is more expensive as compared to the twisted pair cables. If any fault occurs in the cable, causes the failure in the entire network. कई सारी प्रॉब्लम आती है, बीच में अगर फॉल्ट होता है तो उसमें फेल हो जाता है नेटवर्क, लेकिन उसके भी कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज की बात कर रहे हैं तो प्रॉब्लम है वो. Okay, 1 second. Fiber optic cables that uses the electrical signals for sorry, uh, electrical signal, no, sorry, light signal for communications. Light signals converted to electrical signals. Fiber optic cables that holds the optical fibers coated in plastic that are the used to send the data via pulses of the light. This is the architecture of the fiber optic cables. Internal part is also known as core. Optical fiber consists of narrow strand of glass or plastic known as core. A core is a light transmission area of the fiber. The more the area of the core, the lighter will be transmitted into the fiber. Second layer is cladding. Cladding, the concentric layer of a glass is known as cladding. The main functionality of the cladding is to provide the lower refractive index at the core interfaces as to cause the reflection within the core so that the light waves are transmitted through the fiber. Third part is the jacket. The basically the protective coating consisting of the plastic is known as the jacket. The main purpose of a jacket is to preserve the fiber strength and absorb shock and extra fiber protections. फाइबर ऑप्टिक अगर जो आर्किटेक्चर्स की हम बात कर रहे हैं तो कई लेयर होती हैं इसमें. जो इंटरनल लेयर होती है वो उसे कोर बोलते हैं, यहाँ से लाइट सिग्नल्स ज्यादा होता है. बेसिकली जो कुछ डिफरेंस है उसमें ये, जैसे गाइडेड मीडिया की 3 कैटेगरी थी, एक ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल एंड फाइबर ऑप्टिक्स. ट्विस्टेड पेयर में हमने 2 देखे, अनसील्डेड एंड सील्डेड, जो कि ट्विस्ट करके एक केबल्स बना दी गई है जिससे सिग्नल्स जाता है. उस सिग्नल के और जो सिग्नल होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स होता है. उसका मैं ट्विस्टेड में भी 2 थी अनसील्डेड, एक में सील्ड लगी होती है, एक में सील्ड नहीं लगी होती. फिर उसके में भी कई सारी प्रॉब्लम थी, उसका सॉल्यूशन कोएक्सियल केबल्स ने दिया. उसमें 2 तरह के केबल्स थी, बेसबैंड सिग्नल्स के लिए थी, एक ब्रॉडबैंड सिग्नल्स के लिए थी, और सिंगल केबल्स में वो हो रहा था. तीसरी कैटेगरी जो थी वो फाइबर ऑप्टिक्स. फाइबर ऑप्टिक्स में पहली चीज जो इन दोनों से डिफर है वो ये है कि इसमें जो सिग्नल ज्यादा होता है वो लाइट सिग्नल होता है. बाद में वो लाइट सिग्नल कन्वर्ट करना होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल. तो फिर उसके आर्किटेक्चर सभी के आर्किटेक्चर्स की बात कर रहे हैं तो इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो वो इस तरीके की केबल्स होती है, कई सारी लेयर.
ना कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाया जाए और उसमें से सिग्नल्स बाहर ना निकल पाएँ। उसका भी इंटरनल प्रोसेस होता है, कैसे बाहर निकलेगा, कैसे रोका जाएगा, रिफ्लेक्शन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लोअर करना होता है। लोअर का क्या मतलब होता है, वो सारी चीज़ें भी कई कॉन्सेप्ट होते हैं और जो बाहर की जैकेट लगी होती है, बाहर की लेयर होती है, उसका ये होता है कि वो बाहर के एटमॉस्फेयर या बाहर के कई सारे लाइट सिग्नल्स को रोकती है या अंदर वाले से वो इंटरैक्ट नहीं करने देती, इंटरफेस नहीं करने देती। तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल भी है। हाँ, बाकी के 2 केबल से इसका अगर हम डिफरेंस देखें, तो उसमें ये है कि स्पीड की बात करें तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स की ज़्यादा स्पीड होगी, ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होगा। अब ज़्यादातर लोग जो केबल्स यूज़ कर रहे हैं, वो फाइबर ऑप्टिक केबल्स कर रहे हैं। ट्रांसमिशन जो सिग्नल्स होता है, वो लाइट सिग्नल्स होता है। सभी लोगों को पता है कि लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होगी तो इसकी स्पीड ट्रांसमिशन की भी बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन हाँ, कुछ फ़ायदे हैं इसके, ट्रांसमिशन रेट ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होती है, तो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि महँगी आती है कंपेयर टू द प्रीवियस 2 cables, कोएक्सियल एंड ट्विस्टेड पेयर्स। दूसरा, इंस्टॉलेशन इतना आसान नहीं होता है इसका। उन दोनों का बड़ा आसान है कि घर पे भी केबल ले और लगा दो उसे, लेकिन इसे इस तरीके से नहीं लगा पाएँगे। अगर बीच में से ये ब्रेक होती है या कहीं फॉल्ट होता है इसमें, तो उसे भी आइडेंटिफ़ाई करना है और उसे लगाना भी इतना आसान नहीं होता है। जो उसका टेक्निकल बंदा होगा, टेक्नीशियन होगा, इलेक्ट्रीशियन होगा या नेटवर्क में काम करने वाला बंदा होगा, वही लगा पाएगा। तो कुछ हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान हैं। तो अभी तक हमने 3 केबल्स के बारे में पढ़ा या 3 ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में पढ़ा। पहले ट्विस्टेड पेयर, सेकंड कोएक्सियल, तीसरा फाइबर ऑप्टिक और जो गाइडेड मीडिया की कैटेगरी में आती हैं। तो गाइडेड मीडिया की कैटेगरी के सारे केबल्स हमने देख लिए या सारे अ, कंपोनेंट्स देख लिए हैं। अब दूसरा जो ट्रांसमिशन मीडिया है वो है अनगाइडेड। बेसिकली अनगाइडेड वायरलेस होता है। इट आल्सो नोन एज द वायरलेस। अनगाइडेड ट्रांसमिशन transmit the electromagnetic waves without using any physical medium। मतलब कोई केबल्स, कोई किसी की जरूरत नहीं होती, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या सिग्नल्स को वो ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरी है, वो 3 है। रेडियो वेव्स ट्रांसमिशन से भी होता है, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन से भी होता है, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन से भी होता है। पहले इसके एग्जांपल सबसे पहले बताएं। एग्जांपल्स जैसे रेडियो वेव का, जो वाईफाई कनेक्ट कर रहे हो वो भी रेडियो वेव ट्रांसमिशन का एक एप्लीकेशन है। घर एफएम चलाएं हम, वो भी उसी का ही होता है। ऐसी और भी बहुत सारी मल्टीपल एप्लीकेशंस जो होती हैं। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन की बात करें वायरलेस में, तो एक मोबाइल का ब्लूटूथ चलाते हैं, ब्लूटूथ जो काम कर रहा होता है वो इसी ट्रांसमिशन पे काम कर रहा होता है, इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन पे काम कर रहा होता है। या हम टीवी का जो रिमोट होता है वो भी उसी पे ही कर रहा होता है। टीवी के रिमोट के अंदर एक ट्रांसमीटर लगा होता है, टीवी के अंदर एक रिसीवर लगा होता है, तो वहां से जो बटन दबाएं या जो भी बटन प्रेस करें तो वो चल जाता है। तो उसका जो मीडियम होता है ट्रांसमिशन का, वो इंफ्रारेड होता है। इंफ्रारेड की कई सारी एडवांटेजेस भी हैं, जैसे एडवांटेज भी है। एडवांटेजेस की बात करें तो इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, तो बड़ा अच्छा, तो स्पीड ज्यादा होगी तो ट्रांसमिशन भी अच्छा ही होगा। लेकिन डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसका ये है कि ये रूम के अंदर या इंडोर में ही काम करेगा, आउटडोर में ज्यादा काम नहीं करता है। आउटडोर में इसलिए काम नहीं करता है, या इसकी रेंज भी शॉर्टर होती है, बहुत कम होती है। ब्लूटूथ की भी देखी होगी, कुछ ही मीटर होती है, ऐसे ही टीवी के रिमोट की भी कुछ ही होगी। तो आउटडोर में इसलिए भी काम नहीं करता क्योंकि सनलाइट के अंदर भी एक वेव्स होती है जिस का नाम है इंफ्रारेड वेव। तो उसके साथ में वो इंटरेक्ट करेगी, तो उसकी वजह से इंटरफेरेंस होगा, इंटरफेरेंस की वजह से वो काम
नहीं करती है आउटडोर में या सनलाइट में। तीसरी कैटेगरी है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। माइक्रोवेव बेसिकली उस जगह यूज किया जाता है जहाँ पे एक्यूरेसी बहुत चाहिए, स्पीड भी बहुत ज्यादा चाहिए, जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन या कोई भी इसरो या डीआरडीओ के जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके ट्रांसमिशन के लिए एक सैटेलाइट एक मिसाइल से डेटा किस तरीके से आएगा, वहां पर कोई वायर गाइडेड मीडिया तो लगाया नहीं जाएगा, वायर तो लगाया नहीं जाता, तो वो किस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा होता है, तो उस ट्रांसमिशन के लिए डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। अब ये सारी चीजें नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे, इसे एक एक चीज को डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा किस तरीके से काम हो रहा है और कौन कौन सी एप्लीकेशन है। हम जो कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशंस वाला जो कोर्स वर्क के लिए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसमें अ, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है इन सारे टॉपिक्स की या इन सारे मीडिया की। तो एक बार अगर फिर से देखें कि आज की क्लास में जो हमने देखा वो केबल से हम शुरुआत कर रहे थे या कनेक्टर से कर रहे थे, ट्रांसमिशन मीडिया की बात कर रहे थे। ट्रांसमिशन मीडिया बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल्स that exchange or carries the information from sender to receiver. There are the classification of the transmission media. Transmission media categorized into two parts, guided and unguided media. Other guided media is categorized in three categories. First is coaxial, twisted pairs, and fiber optics. For guided media, radio waves, microwaves, and infrared waves. Guided media first category twisted pair cables, two or multiple cables twisted to each other, and they are the frequency range for twisted pair cables is from 0 to 3.5 kilohertz. Uh, there is a cheap as compared to the other transmission media. Installation of the twisted pair cable is easy. And second category is sorry, guided twisted pair cables further categorized in two parts. First is unshielded twisted pair cables, and second is shielded twisted pair cables. Unshielded basically used in the telecommunications. Uh, Following are the categories of the unshielded twisted pair cables: Cat 1, Cat 2, Cat 3, Cat 4, Cat 5. Cat 1 is low speed data rate, that is the kbps. Cat 2 up to 4 mbps it can support. Cat 3 it can support up to 16 mbps. Cat 4, Cat 5. And the advantage of unshielded twisted pair cable, it is cheap installation of the unshielded twisted pair energy. And disadvantage, it can be only used in the shorter distance. Shielded twisted pair cables is used in the longer distance, and disadvantage, it is more expensive as compared to the shielded twisted pair cables. Second category, coaxial cables. Types of the coaxial cables. Third category is fiber optic cables. And unguided transmission, or categories of the unguided media is the three transmission media. First is radio waves, second is microwaves, थर्ड इज इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन। इसके आगे का कल पढ़ेंगे। ओके।